Hello students, how are you? Hope you are safe in your houses during lockdown. I am your English teacher and today we are going to study the very first chapter of your English literature book, that is Through a Colored Glass, written by R.K. Lakshman, Rasipuram Krishnaswamy Lakshman. First of all, let me introduce you to R.K. Lakshman. He was great Indian cartoonist, illustrator and humorist. He was born on 24th October 1921 and died on 26 January 2015. He was brother of R.K. Narayan, the writer of Malgudi Days. In this chapter, we are going to read about a childhood incidents of R.K. Lakshman, which led him to be the greatest cartoonist in India. R.K. Lakshman talks about his childhood, his brother R.K. Narayan and his path towards becoming a celebrated cartoonist and illustrator. Here, R.K. Lakshman is talking about a childhood incidents and about his brother and how he became a cartoonist. Which incidents provoked him to become a cartoonist. So let's start. In our old house in Mysore, there was a window. It had a glass pane divided into many parts. Each part had a different color. One day, the pane broke. Bits of colored glass tinkled down. Here, R.K. Narayan is talking about incidents in his old house in Mysore. यहाँ R.K. नारायण कहते हैं कि हमारे मैसूर के पुराने घर में एक खिड़की थी. उस खिड़की में लगे कांच अलग अलग रंगों में विभाजित थे. एक दिन खिड़की का कांच टूटता है और बिखर जाता है. I ran to pick those pieces. I looked at every color, one after another. Suddenly, I happened to see through the glass and I saw a new world. Mostly in childhood, we all are attracted toward colorful things. Same things happen with R.K. Lakshman. जब कांच टूटता है तो R.K. लक्ष्मण दौड़ते हैं और दौड़ के उन टुकड़ों को उठाते हैं और एक एक करके बारी बारी से हर रंग के कांच को देखते हैं. तभी अचानक वो क्या देखते हैं? एक नई दुनिया देखते हैं. It was strange, weird, frightening. Everybody and everything looked blue. ये दुनिया कैसी थी? तो अजीब थी, विचित्र थी और डरावनी थी. हर वस्तु, हर कोई नीला दिख रहा था. The blue gardener dug the blue earth. Nearby stood a blue cow swishing its blue tail. Swishing means moving quickly through the air in a way that made a soft sound. So, what he saw, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हर चीज नीला दिखाई दे रहा था. जो गार्डनर था, जो गार्डनर गार्डन में काम कर रहा था, वो भी नीला दिखाई दे रहा था. जो मिट्टी वो खोद रहा था, वो भी नीली दिखाई दे रही थी. और पास में ही एक गाय खड़ी थी, वो भी नीली दिखाई दे रही थी और वो अपने पूंछ को हिला रही थी. Why the sun had turned blue in the sky? आसमान का सूरज भी नीला हो गया था. Everything was spooky and still. Spooky means strange and frightening. हर कुछ अजीब और डरावना था. I could not bear it anymore. Quickly, I raised the green glass piece. Thank God, things become cheerful again. The same gardener was swirling away with a bucket by his side. The cow turned friendly. और ज्यादा देर तक आर.के. नारायण इस ब्लू कांच के पार नहीं देख पाए. उन्होंने क्या किया? जल्दी से दूसरा कांच उठाया जो कि हरे रंग का था और उन्होंने वहां पे क्या देखा? तो वहां पे उन्होंने देखा कि हर चीज जो है वो फिर से चीयरफुल है, नॉर्मल है. वो जो गार्डनर है, वो जो मिट्टी उठा के अपने बकेट में रख रहा है, वो अभी ग्रीन हो गया है और काऊ भी जो है वो अभी फ्रेंडली है. इसका नेचर भी कैसा है? तो फ्रेंडली नेचर है. यानी कि यहाँ पे डर खत्म हो गया. इस हरे रंग के कांच से जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें सब कुछ अच्छा लगा. बट आई हैव टू ट्राई आउट द रेड पीस. लेकिन अभी आर.के. लक्ष्मण को क्या देखना था? तभी उन्हें लाल रंग के कांच के बाहर भी तो देखना था. अभी उन्हें दूसरा कांच ट्राई करना था, दूसरा कलर ट्राई करना था. इट स्टक टेरर इनटू माय हार्ट. द काउ वाज रेडी टू अटैक मी. द डॉग बेयर्ड इट्स टीथ. द गार्डनर वाज डिगिंग अप अ स्केलेटन अंडर अ नीम ट्री. अब क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने लाल रंग के कांच को उठाया तो उनका जो हृदय था वो भयभीत हो गया. जो गाय थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अटैक करने को तैयार है. और जो डॉग था, वही कुत्ता था, जिसे वो अपने दांतें दिखा के आर.के. नारायण को जैसे डराने की कोशिश कर रहा था. द गार्डनर वाज डिगिंग अप अ स्केलेटन अंडर द नीम ट्री. और जो गार्डनर था वो अब क्या कर रहा था? तो नीम के पेड़ के नीचे से हड्डियां खोद रहा था.
यानी कि ये जो दृश्य था, ये जो व्यू था, वो बड़ा ही डरावना था। रेड क्लाउड्स गैदर इन द ब्लडी स्काई, और आसमान में लाल खूनी बादल मानो इकट्ठे हो रहे थे। यानी कि अलग अलग कांच के पार जैसे ही आर के लक्ष्मण ने देखा, उन्हें अलग अलग चीजों की अनुभूति हुई। उन्हें ब्लू के साथ थोड़ा डर लगा, ग्रीन में अच्छा लगा, और रेड में फिर से उन्हें सब कुछ डरावना लगा। द वर्ल्ड वॉज अ सीन ऑफ वार, मानो लग रहा था दुनिया एक युद्ध का, ये सामने एक युद्ध का दृश्य हो। स्वेटिंग एंड ट्रेवलिंग, आई स्विच बैक टू ग्रीन, पसीना, मेरे शरीर से पसीने निकल रहे थे और कांपते हुए मैंने फिर से ग्रीन ग्लास को उठाया। एट वंस थिंग्स काम डाउन, इट वॉज अ कूल प्लीजेंट डे आउट इन द गार्डन एट होम वेयर द ब्रीज ब्लू सॉफ्टली। जैसे ही उन्होंने ग्रीन कांच को उठाया, फिर से क्या हुआ, सारा चीज नॉर्मल हो गया और गार्डन में क्या थी, धीरे धीरे सुहानी हवा बह रही थी। फादर एंड मदर वेयर आउट, आई वॉज फ्री टू प्ले द होल इवनिंग। जैसा कि आर के नारायण के पिताजी, उनकी माताजी घर पे नहीं थे, उनके फादर मदर घर पे नहीं थे पेरेंट्स, तो पूरी शाम फ्री थे, यानी कि पूरी शाम उन्होंने उन कांच के टुकड़ों के साथ खेला। As I remembered it, this was my first communication with my surrounding. जैसा कि मुझे याद है, मेरे सराउंडिंग के साथ ये मेरा पहला कम्युनिकेशन था। I loved looking through the broken glass pieces, feeling different with each color. उन्होंने कहा कि मैं हर एक रंग के कांच के बाहर देखना मुझे पसंद आया। मैंने हर रंग के साथ एक अलग अनुभूति की। Perhaps this was an early sign of my interest in visual things, in drawing and painting that were to be my life. Visual things means things that can be seen. आर के लक्ष्मण कहते हैं कि शायद मेरा बाहरी दुनिया के साथ, यानी विजुअल थिंग्स के साथ जो कि ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ये मेरे इंटरेस्ट का पहला संकेत था, जो कि ड्राइंग और पेंटिंग जो कि बाद में मेरे जीवन जीने का एक रास्ता होने वाले थे।